Now our next topic is cross multiplication method. So this is the third algebraic method. So far we have studied substitution method and then elimination method. Now this is the last method to solve a pair of linear equation two variables. It is known as cross multiplication method. So the general form of a pair of linear equations in two variables is so firstly we'll write the pair of linear equation, okay, and in this method these constants should be towards left side, okay. So if an equation is given in this form, you should write it in this form. Cross multiplication method में you need to take care of this constant should be on left side, okay. So firstly we'll arrange the given data, given pair in standard form. After writing the pair, we will arrange the coefficients of x, y and constant in the following way. Okay, x, y and 1 for constant. So we'll start with b1 b2, then c1 c2, then a1 a2 and again b1 b2. So we'll arrange the coefficient in this way, okay. This is the format. After this step, we'll cross multiply, okay, b1 c2 and b2 c1 और इनको माइनस कर देंगे, फिर y के नीचे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे. सबसे पहले ये a2 c1, ठीक है, यानी बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ, देन a1 c2, ये बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट. फिर 1 के नीचे हम लिखेंगे a1 b2 minus a2 b1 in this way, okay. So now after this step we'll write x with constant. और इसको हम उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So this is the answer. Similarly अब हम इनको साथ में लिखेंगे. ये अपना y, ठीक है. तो बहुत ही इजी मेथड है, टेक्निकल है, दिमाग नहीं लगाना है. पहले जनरल फॉर्म में लिखो एक्स वाई 1 लिख के उसके नीचे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यानी सबसे पहले y के कोफिशिएंट लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो, फिर x के कोफिशिएंट लिखो, फाइनली फिर y के कोफिशिएंट लिख दो. इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x के अपॉन में लिखो, फिर y के नीचे वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर 1 के नीचे वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो. इसके बाद x और कांस्टेंट को साथ में लेके x की वैल्यू निकाल लो,
फिर y और कांस्टेंट को साथ लेके y की वैल्यू निकाल लो। तो इस तरह से ये हमारे आंसर हैं, ये जो है ना, दीज आर द सॉल्यूशन। ये x है और ये y है। तो हमें ये मेथड याद रखना है, ठीक है। So let's start exercise 3.5 based on cross multiplication method. In first question it is given that which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. So firstly we need to check the nature of the solution. So we have three conditions. In first part, pair is x minus 3y minus 3 equals to 0, 3x minus 9y minus 2 equals to 0. So first thing, we need to find the ratio of coefficients of x, y and constant. So a1 upon a2 is 1 upon 3. Coefficient of x in first equation is 1 and coefficient of x in second equation is 3. So 1 upon 3. Now b1 upon b2 is minus 3 upon 9 minus 9. In first equation coefficient of y is b1 and second equation coefficient of y is b2. So b1 upon b2 is minus 3 upon 9, which is 1 upon 3. So if a1 upon a2 and b1 upon b2 are equal, then we'll find c1 upon c2. If they are not equal, then we don't need to find c1 upon c2 because there will be a unique solution. Now c1 upon c2 is minus 3 upon minus 2. So we can observe that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. So this is a condition for no solution. No common solution exists. Okay, so we cannot solve this pair, so we'll leave it like this. Okay, now in second part, a1 upon a2 is 2 upon 3, b1 upon b2 is 1 upon 2, here 1, here 2, coefficient जहाँ कुछ नहीं दे रखा हो 1 होगा. So a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Therefore unique solution exist. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर हमें इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो लेट्स सॉल्व इट. सो फर्स्ट थिंग दैट राइट द गिवन पेयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये 5 को इधर लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और 8 को भी इधर लाना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने जो मेथड लिया है उसमें लाना है. एक दूसरा मेथड है जिसमें नहीं लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर उसमें आपको यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा यहाँ जो है. तो इसलिए कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए बस यही याद रखो कि कांस्टेंट शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y और ये 8 इधर आ गया तो -8 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो नाउ we will arrange the given coefficient in this format. Firstly, coefficients of y which are 1 and 2, here 1, here 2, then constant which are -5 and -8, then coefficient of x which are 2 and 3, and then again coefficients of y which are 1 and 2. Okay, so now we'll cross multiply. So 1 into -8 is -8, 2 into -5 is -10 और फॉर्मूले के बीच में है माइनस. सिमिलरली -5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ -15, -8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ -16 और बीच में है माइनस. अगेन 2 2 जा 4, 3 1 जा 3. ओके, नाउ
सिंप्लीफाई इट, माइनस माइनस प्लस, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 3 1. सो एक्स 10 माइनस 8 2, 16 माइनस 15 1. इसके बाद हम x को कांस्टेंट के साथ लिखेंगे क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट को थर्ड के इक्वल भी कर सकते हैं. एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा 2. फिर हम सेकंड को भी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा 1. तो इस तरह से x इक्वस टू 2 एंड y इक्वस टू 1. यही इसका आंसर है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. ठीक है, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे डेटा को इस फॉर्मेट में, उसके बाद जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y को कांस्टेंट के साथ लिखना है. ठीक है, अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा इन अपकमिंग क्वेश्चंस. नाउ थर्ड पार्ट. Here a1 upon a2 is 3 upon 6. b1 upon b2 is minus 5 upon minus 10. c1 upon c2 is 20 upon 40. So we can observe that the ratio of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 are equal. Therefore, infinitely many solutions exist. So therefore we don't need to solve it. उसने कहा केवल आपको यूनिक में सॉल्व करना है, बाकी में नहीं करना है. इसको हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा इसमें भी. ठीक है बच्चों, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका. a1 upon a2 1 upon 3, b1 upon b2 minus 3 upon minus 3, which is 3 upon 3, which is 1 upon 1. So we can observe that a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Therefore unique solution exists. And if unique solution exists, then we need to start solving this. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले से ही C1 C2 इस साइड है, तो इसके मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है. तो लेट्स अरेंज द डेटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट. फर्स्टली b1 b2 which are minus 3, then constant which are minus 7 minus 15, then a1 a2 which are 1 and 3. यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 3 है, ये 1 है यहाँ पर, यहाँ 3 है. ओके, और फाइनली वही लिखना है जो यहाँ पर हो. सबसे पहले जो होता है लास्ट में भी वही आएगा हमेशा, v1 v2. ओके, तो ये हमने जमा लिया. बहुत ही इजी मेथड है, दिमाग नहीं चलाना है इसमें. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. -3 मल्टीप्लाई बाय -15 इज +45. देन -3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज +21, बीच में माइनस. देन -7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -21, -15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -15 और बीच में माइनस. 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9 और बीच में माइनस. जब बीच में माइनस हो तो ब्रैकेट लगाएंगे. Now we'll simplify these terms. अब हम फर्स्ट को थर्ड के साथ लिखेंगे because they are equal. Cross multiply. So x is 4. अब हम सेकंड टर्म को भी थर्ड के साथ लिखेंगे, तो ये भी आ गया -1. इस तरह से सॉल्यूशन आया 4, -1. सो दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन. ओके, नाउ इन सेकंड क्वेश्चन
For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution? So this is a question based on conditions. Okay, so these are called conditional questions. So first part is 2x plus 3y is equals to 7, and second part is a minus bx plus a plus by is equals to 3a plus b minus 2. ओके, तो इसने कहा है कि इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशन हो, इस पेयर के लिए अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ए और बी की क्या वैल्यू रखें जिससे आंसर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए. तो इस तरह के क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है. उसने कहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए निकालो, तो हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. So this is the condition for infinite solution. Now a1 is 2, a2 is a minus b, b1 is 3, b2 is a plus b, c1 is 7, c2 is 3a plus b minus 2. Okay, now by first and second क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इनको. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b. तो इसको हम एक तरफ ले लेते हैं. तो 2a माइनस 3a और प्लस 2b, ये माइनस 3b भी गया तो उधर हो गया प्लस 3b इक्वल्स टू 0. और 2a माइनस 3a इज माइनस है एंड 2b प्लस 3b इज 5b इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अब इसके बाद हम सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड नहीं है क्वेश्चन, ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कंडीशनल क्वेश्चन है. उसने जो कंडीशन दी है बस वो लगाओ और फिर दो इक्वेशन फॉर्म कर लो. अगर दो वेरिएबल हैं तो, और एक वेरिएबल है तो एक से आ जाएगा आंसर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो 6 से माइनस 7 है इज़ माइनस है, 7b प्लस 2b इज़ 9b, माइनस 4 उधर लेके गए तो ये प्लस 4 हो गया. और दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन. ओके, सो नाउ वी हैव फर्स्ट इक्वेशन माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन माइनस ए प्लस 9b इक्वल्स टू 4. तो इफ़ वी सॉल्व दीज टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मैथड वी कैन ऑब्जर्व दैट coefficients of a are same in both the equation. So if we subtract both the equation, a will be cancelled out. So equation 1 minus equation 2 minus a plus 5b equals to 0 minus a plus 9b equals to 4. Sign change, ये cancel, 5b minus 9b minus 4b equals to minus 4, minus cancelled out, b equals to 4 upon 4. So b is 1. Now substitute this value of b in first or second equation. So first equation is minus a plus 5b is equals to 0. Minus a plus 5b equals to 0. Now substitute this value of b in this equation. Minus a plus 5 into 1 equals to 0. Now minus a plus 5 1 5. So plus 5 will become minus 5 and a is equals to 5. तो इसलिए a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1 रखने पर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे. ठीक है, a तो 5 और b 1. देखो कैसे, a 5 रखा यहाँ पे, b 1 रखा, यहाँ a 5 रखा, b 1 रखा, यहाँ a 5 रखा, b 1 रखा. तो a 5 रखा, b 1 रखा, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? 4x. 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6y. 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16 एंड 16 माइनस 2 14. ये इक्वेशन फॉर्म होगी जो हमारा ए और बी आया उसके अकॉर्डिंग. अब चेक करो, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4,
तो 2/4 कितना आया, 1/2. B1 is 3, B2 is 6, so it is 1/2. Now C1 is C and C2 is 14. C1 is 7, C2 is 14. So this is 1/2. तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और यही तो होती है इनफाइनाइट की कंडीशन, ठीक है ना. तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ए की वैल्यू होनी चाहिए 5 और बी की 1. तो इस तरह से हमें करना नहीं है, ये तो बस चेक करा रहा था मैं तुम्हें, ठीक है. लेकिन रफ में तुम ज़रूर चेक कर सकते हो तुम्हारे आंसर सही हैं या गलत, ताकि एग्ज़ाम में नो रिस्क, ठीक है. तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में एक ही वेरिएबल है इसलिए, और यहाँ पे कंडीशन देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर हैव नो सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है. नो सॉल्यूशन के लिए कह रहा है, इसके लिए बताओ के की वैल्यू क्या होगी. तो देखो ये हमारी इक्वेशन है. अब इसमें वो कह रहा है कि फॉर नो सॉल्यूशन, तो हमें पता है फॉर नो सॉल्यूशन A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2. So this is the condition for no solution. Now A1 is 3, A2 is 2k minus 1, B1 is 1, B2 is k minus 1, C1 is 1 and C2 is 2k plus 1. अब देखो एक ही वेरिएबल है तो इसी से काम चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1. 3 इंटू के 3k, 3 1 जा 3, 1 इंटू 2k 2k, 1 1 जा 1, 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3, 3k माइनस 2k इज k, 3 माइनस 1 इज 2. तो बच्चों k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है लेने की, ठीक है ना, क्योंकि एक आ गया हमारे पास. k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है. तो k मस्ट बी 2, ठीक है. चेक कर लो, k अगर 2 होगा तो यहाँ रखोगे 2 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ रखोगे 2 माइनस 1, यहाँ रखोगे 2 इंटू 2 प्लस 1. 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 3x. 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1y. और 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5. तो देखो A1/A2 कितना है, 3/3 विच इज़ 1/1. B1/B2 कितना है, 1/1 विच इज़ 1. एंड C1/C2 कितना है, 1/5. तो हम देख रहे हैं A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के. इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन होगा, और यही तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, ठीक है बच्चों. तो इस तरह से ये कंडीशन क्वेश्चन करना है. जो भी उसने नेचर दिया है वो वाली कंडीशन लगा दो, उसमें वैल्यू पुट कर दो. अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, अगर 1 वेरिएबल है तो किसी एक से सॉल्व कर लो, ठीक है. Now in third question, we need to solve the following pair by substitution and cross multiplication method. तो substitution तो बच्चों में आता है, तो उसको तो तुम करना घर पे. मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताता हूँ इस क्वेश्चन को. कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 9 को उधर लेके जाएंगे, 4 को भी उधर लेके जाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी ये. इसके बाद x, y और 1 फॉर्मेट जमाएंगे. x के नीचे से स्टार्ट करेंगे y के कोफिशिएंट से, यानी b1 b2 से. फिर हम लिखेंगे c1 c2 यानी कांस्टेंट. फिर हम लिखेंगे a1 a2 यानी x के कोफिशिएंट. और फाइनली हम वही लिख देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी y के कोफिशिएंट यानी b1 b2. इस तरह से b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 का फॉर्मेट जमा के उसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 5 इंटू -4 इज़ -20, 2 इंटू -9 इज़ -18, बीच में है माइनस. Similarly, y/9 3 जा -9 इंटू 3 -27, -4 इंटू 8 -32, और बीच में है माइनस. 1 इज इक्वल्स टू 8 2 जा बच्चों 16, 3 5 जा 15. ओके, माइनस माइनस प्लस, इस तरह से. अब हम इनको लेंगे तो x इज इक्वल्स टू, पहले सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो फर्स्ट के साथ थर्ड लेना है. x/-2 इज इक्वल्स टू 1/1. सो x इज इक्वल्स टू 1/1 इंटू -2, दैट इज -2.
फिर हम इनको लेंगे तो y/5 इज इक्वल्स टू 1/1, सो y इक्वल्स टू 1 इंटू 5, तो y इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बहुत फास्टली हमने कर दिया क्योंकि हमें अब आ चुका है मेथड। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये मोस्टली वो नहीं देता है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, जो भी मेथड आपको आता है, तीनों ही मेथड बहुत इजी हैं। ठीक है, मोस्टली जो है स्टूडेंट वो एलिमिनेशन मेथड को ऑप्ट करते हैं, तो ये आप देखें किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उसी से आप करें इसको, लेकिन करके ज़रूर आना है इसको। ठीक है।